has taken a document, say in 2012 or 2013, it says that your membership of the club is for lifetime. Someone like me who got an agreement in 2019 gets a document saying you have paid advance FCAM for so many months. After which, if you want to continue using this, you will have to pay again. It doesn't give you any ownership or membership. Apart from this, the other thing that they have done is Lodha has two different clusters in Lodha Splendora at different points of time, given different things in writing in that documentation. So one part of Ignis as a documentation during particular timeline will say there is a school within the township. Right? You will find in some other documents talk about a hospital within the premises. And those of you who got right at the beginning will remember where the clubhouse was supposed to be, where you have the MMRDA today. You are supposed to have what was at that point of time built as the largest infinity swimming pool, which would let you be in the pool, get a feeling you are in the river. उधर बन गया MMRDA. MMRDA में उसको मिला FSI. उससे उसने बनाया प्लैटिनो and that entire lot which is plot B. Now this is where we run into problems as CLO members, because each one of us, the first document of your flat from Lodha is different from what is for your neighbor, depending on the timeline when the document was created. One of the reasons why members are being requested for a copy of the document is because to do the legal work, those original documents, what it says, what Lodha has promised, we need that information, we need to collate that, and we need to legally fight against Lodha at this point. It's not about troubling members or creating problems or एक बार फाइल खराब होगी दूसरी बार खराब नहीं होगी उसकी क्या गारंटी? This is a genuine problem. We need to know what Lodha promised each of you, each of us, and has he actually done that? If people from plot B say that the clubhouse, the main clubhouse, is in their plot, and therefore those of us who are from plot A should not be using it. If you look at your documentation, it says very clearly there are common facilities that you are entitled to use, and there are specific things within CLO which are yours. The height is all these years for the common space out here. We have been paying the property tax. We have been paying the maintenance charges. The whole thing. And we have been told that all of that will now vest with the federation. The federation, which essentially is association of plot B. And that plot B will decide where you park your car. Because they say what is yours is from P0, your staircase. उनको ये चाहिए कि MLCP में someone from Vivant or wherever is parking his car, he has a problem. He should be able to park his car in P1 or P0 because उसको problem है भाई. आपकी गाड़ी का parking वहाँ डाल देंगे. These are issues which are being whispered, murmured, they haven't come out in the open yet. We have been in meetings with these guys, we have heard them raise their demand with Lodha, and largely this is what it all comes down to. So thanks so much for providing all that clarity. See, this is a burning issue, and there's no denying it is not simple or complicated. And we are already in touch. We've been in touch with Tiara, Ignis, and some others who were willing to join our association for a long time. अब हो क्या गया इसमें? We were always adamant कि आप ये association मत बनाओ, handover मत दो, क्योंकि developer आपको handover देके भाग जाएगा. And this is exactly what has happened right now. रातों रात security गायब, STP में से लोग गायब, सब कुछ. What we were fearing, that's why in our note we said we will hold both Lodha and the Splendora Association of Plot B responsible for
this mess. ना उसको हम exit opportunity देते लोधा को, ना वो किसी को थमा के निकल जाता। ये discussion बहुत टाइम से pending थे, चल रहे थे। We asked लोधास नेटवर्क का जो association बना है, they came to represent my society and even us, but we they don't. हम लोगों ने उनसे मांगे थे memorandum of association, कभी नहीं मिला, right? आज की तारीख में भी उन्होंने ये चीज़ नहीं बताया कि उन्होंने लोधा ने बोला हमने इनको एसोसिएशन का हैंडओवर दिया है, क्या इन्होंने फॉर्मली हैंडओवर लिया है? Have they signed any documents? If they have, what documents have they taken by signature, signing handover? क्या उनको अकाउंट्स मिल गया? क्या उनको सारे फ्लैट्स का डिटेल मिल गया? पार्किंग का डिटेल्स मिल गया? कैसे? कुछ नहीं उनके पास। इसमें सबसे बड़ी कंसर्न ऐसा है कि देखिए अगर कोई चीज़ की हैंडओवर हम लेते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल ले सीएलओ का। अभी सीएलओ रिसेंटली हम मार्च 2024 में हमने हैंडओवर लिया एओ से। हमें हैंडओवर क्या मिला? एक पैसा पेपर का टुकड़ा, अब जस्ट एक हैंडओवर। ठीक है, अभी इसमें लेने के बाद हमें पता चला कि 70 लाख का टेस्ट है, किसी को 9 महीने से पेमेंट नहीं मिले, किसी को 6 महीने से पेमेंट नहीं मिले हैं, वॉट एवर द रीजन। सो अगर हमने वो एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं और हम वापस से वही एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, फिर किसी लार्जर फॉरम में फेडरेशन में हमने एक पल के लिए ये भी एग्री हो गया चलो वी कैन गो टुगेदर, ओके, बट द कंडीशन वाज ओनली कि फर्स्ट यू शो अस द फाइनेंशियल, शो अस द थिंग्स की इसका मंथली एक्सपेंसेस कितना है चलाने का फेडरेशन। हमें कुछ नहीं मिला डेटा, ना वेंडर का डिटेल मिला, ना फाइनेंशियल डिटेल मिला, ना कुछ मिला। आई डोंट नो, एंड बाद में ये भी पता चला कि फेडरेशन बनाने के पीछे भी लोधा खुद है, कहीं ना कहीं से लोधा का ही हाथ है और लोधा ही पॉलिटिक्स खेल रहा है और लोधा ही इसके पीछे वेट किया हुआ। आपको इसका रीजन बताता हूँ क्यों। हाँ, पूरी ताकत से आपने हर तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए ट्राई कर लिया। जब कोई डॉक्यूमेंट्स स्पेशली कोई अगर सीनियर ऑफिशियल्स उसको दबा के रखा है, देयर इज सम रीजन एंड देयर मे बी समथिंग हिडन इनसाइड जो हमें नहीं मिल रहा है। और आप सबको लोधा में पर्सनली मेल किया है, वो चीज़ वो एक ईमेल को मार्क करके उसका शो हो रहा है कि हम रिकमेंड नहीं कर रहे, हमने रेस्पॉन्स नहीं किया, हमने 50 का रेस्पॉन्स किया और हमारा रेस्पॉन्स हर टाइम एक ही चीज़ है। मैंने भी जो मेल डाला है हमारा रेस्पॉन्स वही है कि बॉस हम अपना लॉस करके नहीं जा सकते। आप हमसे बात कर रहे हो जो प्लॉट है 80% अप्रोक्सीमेट लैंड यहाँ का लैंड पार्सल का मालिक है, करेक्ट है। आप एमएलसीपी की जो बात करें, एमएलसीपी का 50% लैंड पार्सल हमारे पास ही है। Have you officially communicated to these other societies of the association whatever you want, sir? Yes, we have officially communicated, we have sent emails. Can everyone be cooperative? Like, क्या हो रहा है? So those kind of saying that हमने अभी देखिए why कल are you परसों publishing that? आपको कल या परसों में मेरा मेल आया वो सभी को हमने मेल किया बिल्कुल, ठीक है। हमने उसमें और भी पॉइंट्स ऐड करके हमने लोधा बाकी जो एसोसिएशन को मेल किया, हमने मेल किया हो चाहे तो उस मेल कॉपी को फॉरवर्ड करके ये अभी क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम लोग को डोंट गो बाय व्हाट यू आर हियरिंग ऑन व्हाट्सएप एंड एल्सवेयर, राइट? अभी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कम स्पीक टू द सेक्रेटरी मिस्टर others who are actually part of this, because right now there is a lot of misinformation. आपको एक चीज बताता हूँ, नहीं अभी एक चीज आप लोगों को जानकारी होगी कि यहाँ पर लोधा इस कैंपस को लोधा स्टूडेंट कैंपस को चलाने के लिए सभी भाई थोड़ा सा 2 मिनट, लोधा कैंपस को चलाने के लिए जितनी भी जरूरत की चीज़ है वो सब प्लॉट में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एसटीपी में हमारे सोसाइटी को मिलाने के अलावा 5 और सोसाइटी को रन कर दी है, ठीक है। उसके अलावा क्लब हाउस, एमएलसीपी, अदर एरियाज को भी कवर करती है। सो पूरा लोड हमारे एसटीपी पे है। उसके अलावा आप दूसरा एसटीपी है छोटा सा, वो है इंग्लिश के अंडर जो इंग्लिश एंड केयर मैनेज करती है, उनको अभी उसके लिए टेंशन नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन इट, हाउ दे कैन वर्क इट आउट। ओके, नाउ वेस्ट मैनेजमेंट का भी वो प्लॉट में है। इनका जो डीजी सेट रखा हुआ प्लॉट में हमारा पी1 के सामने, दैट इज अ प्लॉट, दैट इज आवर लैंड। इनका जो एक्चुअली वो लीगल ऑफिस नहीं बना हुआ है, जो लीज की जो ऑफिस बनी हुई है और लोधा की दैट इज नॉट लीगली कंस्ट्रक्टेड। सो फिलहाल जो टेम्पररी कंस्ट्रक्टेड है वो भी प्लॉट का है। टेम्पल्स आर द पार्ट ऑफ प्लॉटिंग, ऑल रोड, गेट 1, गेट 2, एवरी वन थिंग इज द पार्ट ऑफ प्लॉटिंग, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डिस्कस कि वी हैव टोल्ड कि बॉस आइदर यू हैव टू गो फॉर दिस, यू हैव टू लिसन आवर थिंग्स, नहीं तो हम अपने प्लॉटिंग का एसोसिएशन बनाएंगे।
हम एक बार एसोसिएट इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम एक बार एसोसिएट बनाएंगे तो हम उसका डीप कन्विंस कर सकते हैं, चाहे लोधा करे या ना करे। और आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी बात किया था 12-15 हज़ार रुपये इज नॉट अ बिग डील फॉर एवरी मेंबर्स टू सेफगार्ड आवर ओन लैंड। एंड हमारा मेजर कंसर्न हमने बोला जितने भी इश्यूज हैं हमारे तीनों सोसाइटी के, हम सब कुछ कंसिडर कर सकते हैं अदर देन दिस प्लॉट का रजिस्ट्रेशन, ये हम कंसिडर नहीं कर सकते। हमने केवल दो ही मेजर डिमांड रखे हैं उनको, एक प्लॉट एरिया को रजिस्ट्रेशन दो और 80 पार्किंग जो तुमने हम टीआरआ में लेकर रखा है उसको निकालो बाहर। ये सेम सिचुएशन हमारे साथ हो सकता है, सेम सिचुएशन हो सकता है। उन्होंने 80 पार्किंग किया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कोई दया नहीं अभी देखिए, आई डोंट नो ओपन फोरम में बोलना उचित है कि नहीं, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर वेल नोन, ओके, सो हाउ दे वर्क यू नो वेरी वेल। और इसका वेटेज है वर्किंग होता है। तरुण, ये केस मीन्स टीआईसी ने एक केस इनिशिएट किया था एडवोकेट संपर्क के थ्रू, तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज द स्टेटस नाउ? संपत जी को मैं नहीं जानता था, संपत जी को मैं नहीं जानता था, केस के बारे में मुझे पता था। मुझे बाद में पता चला कि जोशी जी ने उसको इनिशिएट किया था अपने टीम के साथ। संपत जी पे लॉयर है, हम लोगों ने सबने 2-2 राइटर रुपये पैसे पे भी किए हैं एक सम अमाउंट में, करेक्ट है। एक बार आई थिंक लास्ट ईयर 2 मंथ्स बैक मैं इंग्लिश के ऑफिस में संपत जी से मिला था फर्स्ट टाइम। अभी जो आज हमने जो डिमांड किए डॉक्यूमेंट्स का, द रीजन इज दैट ओनली बिकॉज अभी नॉट दे आर सॉर्टिंग टू अस कि बस हम सबका डॉक्यूमेंट रेडी है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट रेडी है। नहीं, तो हम लोगों ने उस टाइम पे जो था मतलब ये नहीं कमलेश जी भी थे, तो हम लोगों ने उस टाइम पे सैंपल 2-4 फ्लैट्स की, जैसे आई थिंक मेरा था, जीतू का था, 2-4 और जोशी जी का था। नहीं सुन, तो हमने उनको हर विंग से एक डॉक्यूमेंट का सेट दिया था, बिकॉज विंग का डॉक्यूमेंट सेट एक ही होना चाहिए। हम लोग ने दिया था जस्ट टू चेक कि आपको क्या क्या इसके अंदर रीड आउट करके पॉइंटर्स बनाने हैं। मैं चाहे तो वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को सबको शेयर कर देता हूँ, जो चाहिए हमें मैं वो भी शेयर कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। संपत्ति के साथ आप देखो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में कौन क्या हेल्प कर सकता है, उसमें मैं ओपनली शेयर कर देता हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। और आप लोगों में से कोई आकर उसमें जल्दी फास्ट अगर हेल्प कर सके तो और भी अच्छा रहेगा, हम उतना फास्ट समझा पाएंगे। देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में कुछ क्रिटिकल पार्ट है जो वो टाइम लगेगा, जैसे एक्सेल बनाना सभी का इट्स वेरी टफ था। पूरा 432 फ्लैट्स के पूरे डिटेल्स निकालने हैं, उनके ये डालने हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं कि इसमें क्या लोगों ने कमिटमेंट किया है और थिंग्स। तो अगर इसमें जो भी हेल्पिंग हैंड आएगा इट्स गुड फॉर अस। बट इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ, जैसे अभी एसटीपी प्लान पे आता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अभी आप ये तो हैंड ओवर दे रहे हो, आई डोंट नो व्हाट इज द लीगल बेस फॉर दैट टू टेकिंग द हैंड ओवर। हाउएवर वी हैव टू गो टू योर हैंड इन द बॉडी सिचुएशन। नहीं सुने, अभी एसटीपी की प्लांट की कंडीशन हमारी बहुत बुरे हाल हो। ये हमें कब पता चला? हमें पता चला कि जब हम उसके वेंडर के साथ ना, देखो ये वीडियो दिखाता हूँ, ये फायर एस्टिमेशन लाइव वीडियो है, ये हम सब के लिए अवेयरनेस होना चाहिए कि क्यों हुआ। लाइव वीडियो में हमारा स्थिति का सॉरी ये जब सिचुएशन था उस समय जयंत था हमारा यहाँ मैनेजर। थैंक्स टू जयंत कि जयंत बिना सोचे समझे, बिकॉज ही वॉज अ सर्टिफाइड फायर सेफ्टी मैनेजर, so he immediately jumped in between and he has saved all of us, putting himself inside. Okay, I thanks to him. But the thing is that आप सोचो सिचुएशन ये क्यों हुआ फायर का। कल हमने पूरा होल डे माई सेल्फ अपूर हम लोग 5-6 घंटे हम उस वेंडर के पीछे और एक लाइन आइटम एसटीपी के हमने अपना भी और उनका भी दोनों का। हमें तब पता चला कि लोधा पिछले 1.5 साल से 2 साल से वो वेंडर को बेवकूफ़ बना रहा है। एवरी 3 मंथ्स का वो खाली एमसी दे रहा है उसको, ताकि तब निकलेगा उसका एमसी खत्म वो निकलेगा बाहर। जबकि वेंडर ने भी अपडेट किया और वेंडर को उसने मना किया है कि यू शुड नॉट अपडेट द थिंग्स। वेंडर को हमने कल पूरे डिटेल्स में जब हमने बात किया था, वेंडर को हमें कम से कम एसटीपी लेने से पहले मिनिमम 10 से 20 लाख रुपए का खर्चा है, मिनिमम जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे हमारा ब्लोअर काम नहीं कर रहा है, एक नॉन रिपेयरेबल है, उसको लेना ही लेना है। हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वर्क नहीं कर रहा है, देयर इज एग्जॉस्ट एंड रिट्रेसिंग होता है, जो एक टांगता है और एक छोड़ता है, दोनों काम नहीं कर रहे हैं। हमारा डक्टिंग टूट के गिर गया है। इसकी वजह से ये अभी मैं फायर का रीजन बताता हूँ, इसकी वजह से हीट जनरेट इतना ज़्यादा हो गया सिस्टम में कि वो पीएलसी अपना वो जल गया पैनल। तो
पैनल जल गया, हीट जनरेशन की वजह से हुआ, कोई रीजन नहीं है इसका। और ये अभी भी आप जब जाओगे तो वहाँ पर आप 5 मिनट से आप आया नहीं कर सकते। पैनल सड़ रहा है बिकॉज ये हीट जनरेशन जो हो रहा है उसकी वजह से पैनल सड़ रहा है, क्योंकि वो जो भी केमिकल्स फ्लो हो रहे हैं बाहर में, या हम सब लोग सी के किनारे रहते हैं, आपको पता है गैस में सॉल्ट होता है, करेक्ट है, इट इम्पैक्ट्स ऑल द पैनल्स। इसका भी फोटोज है बट अभी शेयर करना मुश्किल है, बट मैं शेयर कर दूंगा सभी को जो भी है। सो आप समझो कि इस कंडीशन में अगर हम जाके उनके साथ हैंडशेक करते हैं जो मूर्खता की तरह ले रहे हैं हैंड ओवर विदाउट आगे पीछे सोचे समझे, आई डोंट नो व्हाट टू बी। इसमें एक हम सोच रहे हैं, हाँ आई थिंक आप लोग शुड कम हियर। इसमें एक चीज़ मैंने आपको डिसाइड किया है, आई डोंट नो अगर आपको इसका भी सजेशन चाहिए इसमें। हमने पूरी कॉस्टिंग निकाली है इसको एसटीपी चलाने की। आई थिंक So अभी जो वेंडर ले रहा है इट इज अराउंड 3.5 lakhs per month for system. 3.5 अभी ले रहा है, इसका लास्ट 6-7 साल से बढ़ाया नहीं है बिजली। ये बोल कि अभी 3 महीने का डीओ ले लो, जब हैंड ओवर होगा तो अपना रिवाइज रेट ले लेना फेडरेशन के साथ। नाउ ही इज डिमांडिंग 4.5 lakhs. ओके, कि मेरे को निगम चलाने के लिए 4.5 lakhs चाहिए। दैट इज हिज स्कोप ऑफ वर्क के अराउंड जो भी है, उसमें वो अपना ऑपरेटर रखेगा, केमिकल्स यूज करेगा, माइनर मेंटेनेंस है, मेजर मेंटेनेंस में पैनल का इशू वगैरह आ गया वो भी हम लोग को करना, हम लोग मतलब यूएस टेकिंग ओवर द करना, राइट। सो ये सब चार्जेस हैं। अभी तक लोधा करता था, नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि आगे कैसे होगा, बिकॉज दिस गाय इज गोइंग टू बी रनिंग दिस पर्टिकुलर प्लांट 30th सितंबर इन दिस प्रोग्राम। उसको लोधा ने बोला सितंबर में चला दो, उसके बाद वो बोला है यस अब मैं जाऊंगा नहीं, आऊंगा नहीं रातों रात, आई विल बी देयर, बट some modality has to be defined at that point of time. Either we take over that, और अगर take over करते तो उनका cost आएगा, फिर वो कैसे पैसे लेंगे बाकी सोसाइटी से, उसका modality कैसे होगा, who is going to be the ownership, that's the overhead. Second option is basically we go discuss with these 5 other societies as an individual society, not as an FX model, because otherwise they will be recognizing them, right? So we come with them on a forum and decide कि जिसका quota है उसके हिसाब से करो। Production itself is down many times for festivals at the point. आज भी मेरा नंबर भैया हम लोग यहाँ पे नीचे लड़ता है, कई बार हाथापाई नहीं हुई है to get a allotted water of 170 kilo. So that itself is a problem. Regular CIP होता है, membranes are in good condition still 4-5 years चल रहे हैं. So that's a good thing for us. But this is the situation where we are now. We have to decide how basically we have to take it over. Apex body, local Apex body, Sonal, who is the vice chairman of that Sonal Apex body, she had reached out that we need to basically operate the STP together and to come on discussion and figure out क्या करना है. So they have sent up. We have not replied to that. First we need to basically understand कैसे करना. No, we have replied. I replied very clearly and clear statement. This STP is in our premises and ALOCH is the registered premises. Till the time Lodha was running on, that is okay. That was a mutual understanding. We have allowed the vendor and allowed Lodha to come in. Now, sorry boss, we cannot allow until our permission is there. Second thing, we have also demanded, since it is in our premises, we have already put it the rent file to the Lodha and the legal. We have also filed the legal to Lodha for this. And we are going to apply the same thing with you guys also. We cannot give without a rent. First of all. Second thing, what we were thinking yesterday, myself and अपूर्व, अगर आप लोग भी थोड़ा उस पर मतलब आपकी भी अगर कुछ इसमें नॉलेज शेयरिंग करोगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हम लोग ये सोच रहे थे फॉर द टाइमिंग इफ वी कैन हैंड ओवर दिस STP okay directly and we can make a rule कि we can हम उनको बिलिंग करेंगे एडवांस मंथ के स्टार्टिंग में जो भी एक्सपेंसेस आएगा इंक्लूडिंग द रेंट, उसमें हमारा रेंट भी निकलेगा और हमारा STP के एक्सपेंसेस वो भी निकलेगा। और हम उसको क्योंकि ऐसे भी आज के रेट में आप करो या वो करे वो तो करने वाला वो वेंडर ही है सब कुछ, तो हमको पहले हायरिंग करना है वेंडर को।
टू बी वेरी ऑनेस्ट उस तरीके से करना है. तो व्हाट यू सजेस्ट आई डोंट नो, प्लीज लेट अस नो व्हाट इज योर सजेशन एंड मैडम एक चीज है देखिए, अगर अपॉर्चुनिटी टू अर्न सम रेंट तो किसी भी कंडीशन में मिलेगा. नहीं मोनिका जी, आंसर टू योर क्वेश्चन, वो किसी भी कंडीशन में हमको रेंट मिलेगा ही मिलेगा. नहीं मिलेगा तो हम लीगली निकालेंगे, वो मिलेगा श्योर. नाउ द क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम उसको हैंड ओवर करते हैं, इसका मतलब हम उसको फेडरेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको ऑपरेशन के लिए देते हैं. ये हमारा मतलब मेरा सोचना है पर्सनल. मे बी आई एम रॉन्ग. You are wrong. You are right. You are right. So I'm thinking in that way. अगर मान लो आप संभालो या मैं संभालूं, संभालने चलाने वाला तो ये आदमी है, करेक्ट है, पैसा हमको उसको उतना ही देना है. इसमें ये रहेगा कि हम कम से कम फाइनेंशियली हमको क्लियर कट रहेगा पिक्चर कि हम क्या संभाल रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं. ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो हम लोग उसको आगे प्रपोज करेंगे इस चीज़ को. इसमें दो टाइप्स आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे. फर्स्ट इज द रेंटल विच इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो आपका करेंगे ना. AMC वाला व्हाटएवर यू कॉल इट, AMC रेंटल वैसा. सेकंड विल बी वी आर पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स आल्सो फॉर दैट. एग्री आप तो बता रहा हूँ मैं अभी इन द 30th सितंबर इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट होगा. इसका सबसे मेजर कॉम्पोनेंट जो है चलाने का एमसी में नहीं है, सही बताओ. एमसी का भी कॉस्ट दैट इज ऑल्सो ओके. इसका मेजर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी थी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल का उतना मैंने ग्रुप देखा है जो अपने लोना ग्रुप जो शेयर करते हैं, वो एवरी डे का बिल जनरेट करते हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी उठा है एवरी डे करते हैं. सो अलग है. सो हाँ नहीं मैं भी बता रहा हूँ. सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पर मेजर कॉम्पोनेंट क्या है आपका, एक है उसका भी प्रेजेंट जो सिचुएशन उसको ठीक करना, जो कम से कम अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम कंडीशन में है. ठीक है. दूसरा पॉइंट जो है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल. तीसरा पॉइंट आता है एमसी. एमसी और चौथा पॉइंट आता है हमारा रेंट. तो रेंट इज ऑब्वियसली इनकम फॉर अस, ओके, बिकॉज वी विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू लीव दैट पार्ट. एंड पांचवा पॉइंट आता है प्रॉपर्टी टैक्स. ये टोटल एक्सपेंसेस है. जो एक्सपेंसेस होंगे हम अगर वो फेडरेशन मानता है तो हम फेडरेशन को बोलेंगे तो मुझे तो पैसे हम हर सोसाइटी को डालेंगे. ठीक है. और दूसरी बात है अच्छा नहीं तो हम अगर आप लोग डालोगे दैट मींस यू आर एक्सेप्टिंग दैट ओके सोसाइटी जो हम सोसाइटी को डालेंगे और जिसका रेंट लेना है उसका भाग बंद. सिंपल. जिसका पैसा नहीं आया उसका भाग भाग करने का कंट्रोल. सिंपल सी बात. वही जाएगा. इसमें देखिए हम लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो लोग भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी. रेंट मतलब हमको इनकम जनरेट करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, इसको ऑपरेशनल रखने का इंटेंशन होना चाहिए. रेंट जनरेट करने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन सिंस हमारा डिवाइसेस में है वही कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोल रहा हूँ मैं. मतलब ऐसा नहीं कि हम उसमें से ऐसा कर दें कि वो लोग क्योंकि टीएरआ और इग्निस वो लोग अपना खुद से मैनेज करें. जो लोगों को इंटरेस्ट है ना उनका ग्रुप बनाओ और डिस्कस करो. 8 इनकम पॉइंट ऑफ से नहीं देख रहे हैं इसको, हम इसको देख रहे हैं दो एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो आएगा इसको कंट्रोल करके हम लोग चला पाए तो चलाएंगे. ठीक है. और हम उसको उसी तरीके से एग्रीमेंट करेंगे. नहीं तो उसमें दूसरा एक ऑप्शन कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स और ये जो 5th पॉइंट था ना आपका, दैट मेक इट एज अ रेंट सो दैट ओनरशिप एग्जैक्टली. तो ओनरशिप विल बी ये, अदरवाइज प्रॉपर्टी टैक्स का बोलोगे तो प्रॉब्लम हमारा ये है ना. देखो गोदा ने क्या किया क्या नहीं, तो इन लोग ने डिस्कशन की तो पता चला मंथली कितना एक्सपेंस है क्या है नहीं, आगे पीछे क्या वेंडर के ड्यूज है वो सब कुछ खबर नहीं. इसमें मैं नाउ हमको उनसे मिला है, सो वी हैव टू सिट विद देम, अंडरस्टैंड एक्चुअल ट्रू कॉस्ट, नॉट जस्ट दिस वन. सब लोग एक फ्यूचर कॉस्ट विजिबल पॉइंट लेके आइए. मेरे क्या बात है. Now when we do this, so we have to be ready for that common areas other that they are going to charge us for. We are ready. Because वो बोलेंगे कि क्लब हाउस टैक्सेस आप बोलो. देखो मैं तो अभी भी रेडी हूँ. तो चार्ज करेंगे. अभी कुछ उसमें हम तो वैसे भी क्लब हाउस का
only for STP. STP नहीं, STP बहुत है। Everything is open. करण सुनिए, अरे ये ट्रांसफॉर्मर रूम भी होगा This is an art premises. अबे बहुत पैसे निकलेंगे भाई बिल्डिंग दी करण मैं मिनिमम लिस्ट बताता हूँ क्या क्या है। पहला है STP, दूसरा है उसका गेटसेट, तीसरा है उसकी ऑफिस, गेट 1 गेट 2, ठीक है। सुनो ट्रांसफॉर्मर वही ट्रांसफार्मर सब है। अगर आप देखोगे आप ऐसे की बात नहीं है, जैसे उन्होंने बोला ना, एक्चुअली उन्होंने अपने लैंग्वेज बोला, वही लैंग्वेज हम लड़ाई कर रहे हैं। रेंटल आप दे रहे हो ना, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट से कि प्रॉपर्टी टैक्स हम डिवाइड करेंगे, ये सब कुछ मत नहीं, बोलो। नहीं। सीधा प्रॉपर्टी टैक्स वो हम देखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स सिंपल We are not taking property tax. We are not sharing that. No, no, no. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर STP की सर्विस नहीं देगी, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर मान लीजिए हम बोले कि बेसिक से देना पड़ेगा अगर STP की सर्विस मान लो मैंने रोक दिया, फॉर एग्जाम्पल हम बोले चलो मेरा प्रीमाइसेस है, हमने रोक दिया, यानी सुनो तो मेरी बात तो सुनो। सो ये एक कोर्ट केस का मुद्दा उड़ जाता है, तो हमें सर्विस तो देना पड़ेगा। अभी ना सर्विस वो देगा कि हम देंगे कि हमें चूज करना है, ठीक है। Guys,